So is the board visible? Is the board visible to you, everybody? Yes, Yes, sir. sir. So, good morning and welcome to this Mechatronics online lecture. In the previous lectures, we have seen Karnaugh map, simplification of Boolean expressions using Karnaugh map. So there we have solved problems based on SOP expressions, POS expressions, okay, etc., etc. And uh, then how a framework of Karnaugh map is drawn, then how to place the values, then how to make a combinations. That all we have seen, and I think most of the students are well aware of the process of simplification using Karnaugh map. Now, if you see the different books of digital logic, so there are different books are available. Like the Bolton book is there, Ramchandran book is there, and then there are many books. So different books uses different framework or different structure of Karnaugh map. Okay, uh, the output is same, but the structure of Karnaugh map is different. Uh, like for example, some books are using SI system, SI unit system. Some books are using MKS unit system. Some books are using CGS system. Okay, so different books may use different units: SI system, MKS system, CGS system. Uh, but you cannot say that ये गलत है या वो गलत है, सभी अपनी जगह पे सही है. वैसे ही कार्नोग मैप का जो स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग बुक्स में दिया है अलग अलग तरीके से. तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बुक में एक अलग स्ट्रक्चर कार्नोग मैप का देखने को मिलेगा, तो आपको लगेगा यार ऐसा कैसा है, ये तो क्लास में तो हमने अलग ही स्ट्रक्चर पढ़े थे और यहाँ पे तो कुछ अलग ही लिखा हुआ है. तो ऐसा नहीं रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, उनका आउटपुट सेम आता है. ओके, स्ट्रक्चर भले अलग अलग हो, आउटपुट सेम आता है. तो आज के इसमें देखेंगे कि अलग अलग किस तरह से कार्नोग मैप के स्ट्रक्चर्स रह सकते हैं, okay? और किस तरह से उनका आउटपुट पे उसका असर नहीं होता है. तो आज हम देखेंगे कि सेम प्रॉब्लम हम जो है अलग अलग कार्नोग मैप के स्ट्रक्चर और अलग अलग कार्नोग मैप के फ्रेमवर्क से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि उसका आउटपुट सेम आता है कि नहीं है. At the start of the lecture, I am not claiming that output will be same. Let us see, we will discuss this point at the end of the lecture, whether we are obtaining the output as same or not. So today's topic of discussion is the different framework or different structures of Karnaugh map. So we will solve same problem with different structures, and we will observe whether we are getting same output or not. Okay. Now first we will take one example. ये प्रॉब्लम है. अब ये प्रॉब्लम को देखते ही हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये एसओपी का प्रॉब्लम है या पीओएस का प्रॉब्लम है. तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, एसओपी है या पीओएस है? हाँ, SOP. SOP. एसओपी का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे
लिया है समेशन स्मॉल एन। तो समेशन बोला तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट का है, एसओपी का प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करते हैं अपने कन्वेंशनल फ्रेमवर्क से जो हमने अभी तक सीखा है। ओके, तो अभी हमारा कन्वेंशनल फ्रेमवर्क क्या है? कन्वेंशनल फ्रेमवर्क में यहाँ पे दो ग्रुप बनाए हमने, ए बी और सी डी का। ए बी यहाँ लिखा, सी डी यहाँ लिखा। ओके, 0 0 0 1 1 1 1 0। ये सीक्वेंस फिक्स रहता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 0 देन व्हाट इज दिस 0 1 1 1 एंड 1 0। तो यहाँ पे आएगा a complement b complement, then here is a complement b, here is a b, and this is a b complement. Similarly, this is c complement d complement, this is c complement d, this is c d, and this is c d complement. Okay. And this is 0, this is 1, this is 3, this is 2. 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14. Okay. So this is our conventional framework, or the framework which we have seen over the period of 4-5 lectures. Okay. Now what we'll do, we'll put the values. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिया है, सेल वैल्यूज दिया है, यहाँ पे 1 रखना है कि 0 रखना है? एसओपी एक्सप्रेशन में क्या करते हैं हम? 1 रखते हैं, करेक्ट, 1 रखते हैं। तो ये जो सेल वैल्यूज है यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो 2 8 8 10 10 12 12 14. So these are the positions, or these are the cell values where we have placed 1. Now start grouping it. So first we'll see whether octet is there or not. यहाँ पे octet है क्या? तो octet है क्या यहाँ पे? ऑक्टेट आ रहा है क्या, बन रहा है क्या? नो, ऑक्टेट नहीं बन रहा है। फिर हम देखते हैं क्वाड बन रहा है क्या? नो, यस क्वाड बन रहा है? यस सर। यस। 14 10 12 और 8 सर। 14 10 12 और 8 14 10 12 8 ये क्वाड बन रहा है, क्योंकि क्वार्टर वैल्यूज को भी हम, ये जो है ये वैल्यूज को भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये जो क्वाड है ये इस तरह से, ये क्वाड हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये क्वाड बन रहा है। अच्छा, ये क्वाड बनने से हमारे सारे 1 कवर हो गए क्या? नो सर। हमारा यहाँ बचा हुआ है। अब इसको हम किसी क्वाड से कवर कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद वाला प्रायोरिटी है पेयर का। पेयर बन सकता है क्या इसका? यस सर, यस, पेयर बन Yes. सकता है। कौन से 2 और 10, 2 2 और 10, 2 एंड 10, करेक्ट। तो यहाँ पे ये ओपन आएगा, ये एक ऐसा, तो ये एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, और एक क्वाड और एक पेयर से हमारे सारे 1 कवर हो गए। तो यहाँ पे अभी हम फाइनल आउटपुट लिखते हैं। तो
फाइनल आउटपुट लिखने के लिए ये कॉर्ड से कौन सी वैल्यूज कॉमन वाला है। अब ये जो कॉर्ड है ये दो रो से मिलकर बना है, तो ये दो रो में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, क्योंकि आप बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों अलग अलग है लेकिन ए कॉमन है, तो ए कॉमन निकालते हैं। और ये कॉर्ड ये कॉलम और ये कॉलम से मिलकर बना है, तो ये कॉलम और पहला कॉलम, पहला और चौथा कॉलम, इसमें क्या क्या कॉमन है, D complement. डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, बराबर। Yes, sir. हाँ, तो ये जो है ये निकला कॉर्ड से, और हमको पता है कॉर्ड से दो ही वेरिएबल कॉमन निकलते हैं, ऑक्टेट से एक वेरिएबल कॉमन निकलता है, पेयर से कितने वेरिएबल कॉमन निकलते हैं, ऑक्टेट से एक वेरिएबल निकलता है कॉमन, कॉर्ड से दो वेरिएबल निकलते हैं, पेयर से कितने निकलते हैं, 3 variables. 3 वेरिएबल्स निकलते हैं। करेक्ट करेक्ट, पेयर से 3 वेरिएबल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे कौन से 3 वेरिएबल्स आएंगे, देखो ये दो अलग अलग रो में, एक ये रो है एक ये रो है, तो पहला रो और आखिरी रो इसमें क्या कॉमन है, D complement. डी कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, और ये दोनों जो पेयर है ये एक ही कॉलम में है सी डी, तो ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये 3 वेरिएबल्स यहाँ से निकलेंगे, तो आपका आउटपुट आएगा y इक्वल टू डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आउटपुट है। तो ये जो है ये हमने एक फिर फ्रेमवर्क यूज करके यहाँ पे ये सेम आउटपुट हमको मिला है। अब एक दूसरा फ्रेमवर्क ट्राई करते हैं कि ये सेम वेरिएबल या सेम आउटपुट यहाँ पे मिलता है। अब आप अगर अलग बुक में देखोगे अब ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, इसके दो ग्रुप बनाए, ये वाले ग्रुप को रो फॉर्म में लिखा है, ओके, और ये सीडी को या एबी को कॉलम फॉर्म में लिखा और सीडी को जो है रो फॉर्म में लिखा। ऐसा ना करते हुए अगर मैंने यहाँ पे एबी लिखा और यहाँ पे सीडी लिखा, यानी एबी के वैल्यूज सारे कॉलम्स को दिए और सीडी के वैल्यूज सारे रोज को दिए, इसका ये सेम रहेगा, दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये जो रो वैल्यूज कॉलम वैल्यूज है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसको क्या किया हमने, रो में लिखा ए बी और सी डी को जो है वो कॉलम में लिखा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे अभी डिफरेंस फ्रेमवर्क यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, ए बी के जो वैल्यूज है ये रो को असाइन किए थे और सी डी के वैल्यूज ये कॉलम को असाइन किए थे। अब ये स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, ए बी के वैल्यूज जो है वो कॉलम को असाइन किए और सीडी के वैल्यूज ये रो को असाइन किए। अब ऐसा करने से ये फ्रेमवर्क में क्या चेंजेस आएंगे, कोई बता सकता है? ऐसा लिखने से ये कार्नोट मैप के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे या चेंजेस नहीं आएंगे?
Yes, sir. आएंगे changes. चेंजेस आएंगे, ओके। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या चेंजेस आएंगे। यस इंद्र। वेरिएबल इंटरचेंज हो जाएंगे ना। वेरिएबल इंटरचेंज होने से क्या होगा? रोहित, Yes, sir. चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे कि हमने वेरिएबल्स को दूसरे तरीके से लिखा तो? सर पोजीशंस तो वही रहेंगी ना, सब वेरिएबल इंटरचेंज होंगे, सो तो बुलियन एक्सप्रेशन भी सर जो चेंज होंगे थोड़े बहुत, उतना नहीं होंगे सर पर होंगे थोड़ा बहुत। नहीं, थोड़ा बहुत यानी क्वांटिफाई, थोड़ा बहुत नहीं, क्या होंगे चेंजेस होंगे तो क्या होंगे, या नहीं होंगे तो नहीं होंगे। सर होंगे। होंगे तो क्या यस। चेंजेस होंगे? ये वाली इसमें और ये वाली इसमें क्या चेंजेस होंगे? तो सेल वैल्यूज तो सेम ही रहेंगे, 0 1, नहीं, यस, सेल लेकिन वैल्यू, जाएंगे ना। सेल वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, सेल वैल्यू भी चेंज होगी, सेल वैल्यू भी चेंज होगी। ये ऐसा लिखने पे चेंजेस होंगे, क्या होंगे? सेल वैल्यूज में चेंज होगा। अब सेल वैल्यूज में कैसा चेंज होगा देखो। ओके, अभी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम? ABCD, ABCD, ओके। तो यहाँ पे है 0 0 और CD है 0 0, तो इसका सेम वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। हम इसी तरह से 4 बिट डेटा लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 1 0 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 1 0 0। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0। ठीक है। अब ये रो में क्या आएगा? 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 0 0 1। यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 1 1। यहाँ आएगा 0 1 1 1। यहाँ आएगा 1 1 1 1। यहाँ क्या आएगा? 1 0 1 1। यहाँ पे आएगा 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1 0 1 0। इसी तरह से आएगा, बराबर। ABCD, तो AB कितना है? 0 0 है। CD कितना है? 0 0 है। तो ये हो गया 0 0 0 0। तो इसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। देन इसकी सेल वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी 4। इसकी 12 12 आएगी। इसकी 8 8 आएगी। इसकी 1 इसकी 5 इसकी 3 हाँ? 13 13 13 इसकी 9 9 इसकी 3 6 sorry 7 7 7 इसकी 15 15 इसकी 11 11 11 इसकी 4 4 में 2 हाँ 1 2 2 आएंगे। इसकी
6, 60 14 or 10. 14 and 10. एंड 10। तो ये अलग अलग लिखने से क्या हो रहा है कि इसके सेल वैल्यूज अलग अलग आएंगे। 1 4 right। now what we'll do, now we'll put the same cell values here। अरे इसके पहले हम क्या लिखते हैं, इसका ये लिखते हैं कॉम्बिनेशन। नाउ दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, and this is C D complement। Similarly, this is A complement B complement, this is A complement B, this is A B, and this is A B complement। Okay? Now we will put the values। So 2 पहला क्या है 2, where is 2, where is 2, हाँ ये। So this is 1, then 8, 8 कहाँ पे, 8, then 10, that is 10, this is 10, 12, 12 कहाँ गया, हाँ ये, then 14, 14, this is 14। अब ये आ गया, अब इसको क्या करते हैं, पेयर करते हैं। पेयर करते थे अगेन क्वाड से चालू करते हैं, सॉरी ऑक्टेट से चालू करते हैं। ऑक्टेट है क्या यहाँ पे, ऑक्टेट नहीं है। No, sir. हाँ तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर कॉर्ड देखते हैं। कॉर्ड है क्या, Yes, sir. कॉर्ड है ये वाला, ये और ये कॉर्ड। उसके बाद अब ये बच जाता है, तो इसको क्या करेंगे हम, Pair. पेयर करेंगे, राइट। यहाँ से ये हो गया। अभी इसमें क्या करते हैं कि कॉमन निकालते हैं। तो ये कॉर्ड में से कॉमन क्या निकालते हैं, देखो ये वाला ये है और ये वाला ये दोनों। पहले एक काम करते हैं, पहले इसमें देखते हैं कॉलम में। कॉलम में क्या कॉमन है, कॉलम में क्या कॉमन है, और रो में क्या कॉमन है, B complement. डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। ओके, पेयर में देखते हैं। पेयर में दिस वन रो, सॉरी वन कॉलम, दिस कॉलम, इसमें क्या कॉमन है, B complement. डी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। और ये रो पूरा का पूरा कॉमन ही है। सो दिस इज सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू ए डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर इसको देखा तो ये क्या है, सेम है, बराबर। ये क्या है, सेम है। Same. इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा फ्रेमवर्क यूज कर रहा है या कोई बुक में अगर ऐसा किया है कि पहला जो पेयर है ए बी का, उसको कॉलम में उसकी वैल्यूज असाइन ना करते हुए, सॉरी रोज को वैल्यू असाइन ना करते हुए कॉलम को वैल्यूज असाइन किया, और दूसरे पेयर को जो है वो रोज को वैल्यू असाइन किया, तो भी आउटपुट में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आउटपुट में फर्क नहीं पड़ता है। अभी और एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि सेम प्रॉब्लम और एक फ्रेमवर्क से अगर सॉल्व किया तो क्या आंसर आता है।
अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा AC और यहाँ लिखूंगा BD। तो मैंने ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये 4 वेरिएबल्स के 2 ग्रुप बनाए। पहले इसमें मैंने AC दिया और इसका एक ग्रुप बनाया, और दूसरा जो है BD दिया और इसका एक ग्रुप बनाया। ठीक है, AC का मैंने एक ग्रुप बनाया और BD का एक ग्रुप बनाया। और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, वेरिएबल्स क्या आएंगे, A complement C complement A complement and C complement C C complement then A complement AC AC complement AC complement, राइट। और यहाँ पे B complement D complement हाँ B complement D हाँ BD and BD complement। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग टैग लिया है, AC का बनाया, BD का बनाया। AC के वैल्यूज को रो को असाइन किया, BD के वैल्यूज को कॉलम को असाइन किया। अब इसके सेल वैल्यूज निकालते हैं। तो सेल वैल्यूज बोले तो ABCD यही फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे A और C है, पहला और तीसरा, और BD के वैल्यूज को आपको दूसरा और चौथे में अरेंज करना है। तो ये हो गया पहला। यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 एंड D is 1। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ये वैल्यू असाइन किया। दूसरा और चौथा क्या है, 1 1 है। दूसरा और चौथा क्या है, 1 0 है। सिमिलरली पहला तीसरा 0 1 है, पहला तीसरा 0 1 है, पहला तीसरा 0 1 है, पहला तीसरा 0 1 है। और दूसरा और चौथा क्या है, 0 0 है। दूसरा और चौथा 0 1 है। दूसरा और चौथा 1 1 है। दूसरा और चौथा 1 0 है। सिमिलरली पहला तीसरा 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है। दूसरा चौथा 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है एंड 1 0 है। पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा। दूसरा चौथा 0 0 है। दूसरा चौथा 0 1 है। दूसरा चौथा 1 1 है एंड 1 0 है। तो इस हिसाब से इसके सेल वैल्यूज चेंज होगी, क्योंकि सेल वैल्यूज लिखते हैं So in second row, I guess second row last column, first and third 0 1. There it should be 0 and 1. yes correct. So this is so first and third is 0 1 and 1 0. Now is it correct? अब बराबर है? Yes, so yes. तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Then this is BD 0 0 0 0 0 0 0 0। Then ठीक है, अभी I think it seems okay. So remaining is good. Remaining is correct. Okay. Thank you. Now we will find out the cell values. So this is 0. This is 1. This is I think 3. This is what? सर 5 है। 5. so 5 4. ये 2 3 3 7 6 7 6. This is 10
10, 11, 11, 15, 15, 14, this is 8, 12, 9, देखना है यार 13, 12. ओके, अब क्या करेंगे, ये वाले वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे फिर से 2 वेरी 2 8 8 कहाँ गया 10 12 14 तो यहाँ पे भी ऑक्टेट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड देखेंगे, क्वाड क्वाड देखेंगे. सो दिस इज द क्वाड एंड देन दिस इज अ पेयर. तो एक क्वाड और एक पेयर से हमारे सारे जो 1 है वो कवर हो गए. अभी हम इसका कॉमन निकालते हैं. अब इसका कॉमन बताओ मुझे क्या आएगा. कॉमन क्या आएगा. सर क्वाड का AD कॉम्प्लीमेंट. राइट, ये 2 रो है, तो ये रो में से कॉमन क्या है, ए है, और ये कॉलम, इसमें से क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया क्वाड का कॉमन. पेयर से निकालते हैं पेयर. सर C और B कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट. तो ये आएगा, इसमें ये 2 रो में बी कॉमन है और ये एक ही कॉलम है, तो यहाँ पे आएगा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आउटपुट लिखना है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी बी कॉम्प्लीमेंट डी, या अपन इसको एबीसी के सीक्वेंस में अगर लिखते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आउटपुट. तो अगर इसको अगर कंपेयर किया इसके साथ तो ये क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कार्नोट मैप का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उसको किसी भी फॉर्म में अगर लिखा हो, लेकिन अगर आपने उसका करेक्ट सेल वैल्यूज निकाले हैं और बराबर पेयरिंग किया है और आउटपुट निकाला है, तो वो आउटपुट कैसा आता है, सेम आउटपुट आता है. ओके, तो दिस इज बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्नोट मैप. अब मैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर का कार्नोट मैप इसलिए बताया, आपको एक ही कार्नोट मैप का स्ट्रक्चर यूज करना है, आपको अलग अलग ये कंफ्यूजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है. ओके, आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर, जो हम ये कन्वेंशनल जो स्ट्रक्चर है जो हम यूज करते हैं, हमको यही वाला स्ट्रक्चर याद रखना है और एग्जाम में भी आया तो इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करना है. लेकिन अगर आपने कोई बुक रेफर किया या कोई अगर इंटरनेट का मटेरियल अगर आप रेफर कर रहे हो, तो वहां पे आपको ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो सीखा है वो गलत है. ओके, हमने जो सीखा है वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और एक इसका तरीका है. अगर आप कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल्स लो, अब यहाँ पे अगर आप तीसरा कॉम्बिनेशन ए और डी ग्रुप करते हैं, एडी का ग्रुप करते हैं और सारे एडी के वैल्यूज जो है वो रोज को असाइन करते हैं, और बीसी का एक ग्रुप बनाते हैं और सारे कॉलम्स को बीसी का वैल्यू असाइन करते हैं, और उसके बाद उसकी सेल वैल्यूज निकाल के अगर मैपिंग करते हैं तो भी आपका आंसर जो है वो सेम आता है. तो इसलिए आप कोई भी वेरिएबल कोई भी ऑर्डर में लिखो, उसके हिसाब से अगर आपने करेक्ट सेल वैल्यूज फाइंड आउट किए
तो आपका जो है आंसर जो है वो करेक्ट आता है। अब इसमें कैसा है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो स्ट्रक्चर यूज किया है वो अलग तरह का स्ट्रक्चर यूज किया है। ओके, तो कोई भी फ्रेमवर्क आपको दिया हो, आप वहां पे मैपिंग करके आप उसका आउटपुट निकाल सकते हो। तो अपना ये कब रहता है प्रैक्टिकल सेशन? मेकाट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल सेशन कब रहता है? आई थिंक फ्राइडे को रहता है शायद, फ्राइडे को 1 से 2। तो फ्राइडे को 1 से 2 के बीच में हम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और वो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट रहेगा। तो आपने वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं क्या? Yes, sir. सेकेंड ईयर में या Yes, sir. अभी? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कौन से सब्जेक्ट के? Heat transfer. Transfer. हीट ट्रांसफर का, राइट। हीट ट्रांसफर का आपने वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, राइट। सी प्रोग्रामिंग का भी किया है क्या? Sorry, sir. सीए का भी परफॉर्म किया है क्या वर्चुअल एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. CA का भी था। अच्छा अच्छा, तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था? गूगल पे जो ऑनलाइन होता है ना कोडर, मैम यूज टू यूज दैट, बट आई गेस आई पर्सनली यूज VS कोडर। Which one? VX? VS कोडर Okay. for CA1 ना Actually- sir, for C programming. You're asking for DBMS or C programming? Okay. Have you used VLab, virtual lab platform? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For HT we use virtual lab. For C we use virtual lab. So we also use virtual lab. It is developed by IIT Kharagpur. So this Carnot map experiment is developed by IIT Kharagpur, and in that IIT Kharagpur they have used different structure. So for example, ये वाला जो structure है, जो AC और BD वाला है, तो उन्होंने जो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट वहां पे जो डिजाइन किया है IIT खड़गपुर ने, वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किया है। तो आज का लेक्चर लेने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर हमने कुछ अलग सीखा है और ये कुछ अलग है, ये फीलिंग आपको ना हो। इसलिए मैंने सेम प्रॉब्लम को अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करके सॉल्व करके दिखाया है, और आउटपुट जो है वो सेम आता है, वो भी हमने प्रूव किया है। तो इसलिए वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय अगर कोई अलग स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हो, तो आपको उसको सॉल्व करके आना चाहिए। तो अभी हम जो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने कुछ अलग सीखा है और यहाँ पे कुछ अलग है। अच्छा, उसमें और एक डोंट केयर वाला एक कंसेप्ट है। डोंट केयर वाला कंसेप्ट जो है वो हम आज नहीं देखेंगे, उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम थोड़ा यहीं पे रुक जाते हैं। तो आपको कोई डाउट होगी तो हम वो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय वो डाउट हम उसको क्लियर करेंगे। So I think we should stop over here. So thank you very much for attending this class. Thank you very much. Have a nice day. हमें अटेंडेंस ले लेना बेटा। उधर घेतली। हाँ ठीक। Okay. So thank you very much. You can leave the meeting now. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.